सो आज हम लोग को देखना है डेटा फ्रेम फंक्शंस। ठीक है, डेटा फ्रेम फंक्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। मोस्टली द फंक्शंस आर अवेलेबल, दैट इज इंडेक्स, कॉलम्स, डेटा टाइप, इन्फो। ओके, select the types, values, axis, ending, size, shape, memory uses, and empty. Okay, so these are the many functions. So first we think index. Okay, so it return the row labels. Okay, so when we use df.index, ये आपको क्या देगा, रिटर्न द लेबल्स ऑफ द रोज। ठीक है, रो के जो भी लेबल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, वी गेट द कॉलम्स। ठीक है, कॉलम लेवल ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा टाइप, रिटर्न द डेटा टाइप इन द डेटा फ्रेम्स। जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है देन वी गेट। ओके, सो सपोज नाउ, ओके, तो फर्स्ट थिंग इंडेक्स। ओके, क्या मिल रहा है, दैट इज द रो इंडेक्स। ओके, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द कॉलम्स। नाउ third one is axis. Okay, so when we use df.axis, ये आपको दोनों देगा, द कॉलम इंडेक्स मतलब लेवल्स ऑफ द रोज एंड लेवल ऑफ द कॉलम्स। सो इंडेक्स एंड कॉलम्स ये दोनों किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, df.axis के अंदर। ओके, तो फर्स्ट आपको रो, सेकेंड आपको क्या मिलेगा, कॉलम इंडेक्स। ओके, फर्स्ट आपका रो इंडेक्स। सो ये जो आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा था वो आपको एज इट इज एक्सिस का मिल रहा है। ओके, तो ये आपको क्या दे रहा है, इज ए काइंड ऑफ लिस्ट एक्चुअली। ये क्या है, लिस्ट। ओके, जिसके अंदर क्या है, रो इंडेक्स है एंड कॉलम इंडेक्स है। ओके, सो सपोज ये लिस्ट है, देन वी कैन यूज एक्सिस जीरो। तो एक्सिस जीरो क्या, तो आपको क्या मिलेगा, द सेम आउटपुट दैट वी गेट बाय यूजिंग df.index। ठीक है, सेम आउटपुट। So either we can use df.axis 0 or we can use df.index. ये दोनों सेम। अल्टरनेटिव we can use df.index. Okay. So next, in the same case, df.axis 1. So the same we can use df.columns. Okay. Alternative. Okay. So by using the axis, we get both axis 0, index only, axis 1, columns only. Okay, column labels actually. The next one is df.size. When we use df.size, it returns the total number of elements. So in this data frame, how many elements we have? We have 4 elements. 1, 2, 3 and 4 elements. Okay. So in data frame dot size, we get 4. The next one is the shape. Okay. So the shape function return the number of rows and number of columns. So first value is what it is, it return number of rows then number of columns. Okay, it's always 2 dimensions actually, so we always get the both values, number of rows and number of columns. So first one is the number of rows, second one is the number of columns. Okay, in the form of tuple. Okay, so we get tuple, number of rows and number of columns. Okay, so the next one is ending. Ending, it means number of dimensions. Okay, number of dimensions, it means it may be, so always it's a 2 dimension actually. ठीक है, तो इसमें क्या होगी, रोज होगी एंड कॉलम्स होगी, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज यूज टू चेक दैट पर्टिकुलर df इज एम्प्टी और नॉट। डेटा फ्रेम आपकी एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, तो व्हेन वी यूज df.empty, ये आपको क्या देगा, ट्रू और फॉल्स। Okay, if suppose df is empty, then return true, otherwise return false. df dot empty. Okay, so df dot empty, so you cannot use function. Okay, you have to tell it df dot empty, false. Okay, so next one is, suppose I want to find out that particular df contains
एन वैल्यूज, ठीक है, क्या इस डीएफ में एन वैल्यू है या नहीं, मुझे फाइंड आउट करना। दिस पर्टिकुलर डीएफ कंटेन एटलीस्ट वन डीएफ, वन एन वैल्यू, ठीक है। So how we can check? Now we can check by using is null. Okay. So df dot is null return the true and false for each element. Okay. आपको क्या देगा? True and false for each element. df dot is null. Okay. So df dot is null return true and false for each element. Okay. So यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 8000, इसका क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि ये नल नहीं है, इज नल। इज नल इट मीन्स इज ए क्वेश्चन मार्क, हम लोग पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट नल है क्या। ओके, तो आंसर क्या मिला, नहीं है, नो, फॉल्स। ओके, तो फॉर दिस वैल्यू we get true, is null, true. Okay, for the next one value nn, yes, it's again true. Okay, then for this value we get false. ठीक है, ये क्लियर है। रीजनल आपको क्या देगा, रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज, इसी से कंसिडर, हम इसी से रिलेटेड है। ओके, हमें क्या निकालना है कि देख डीएफ में एन वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, हमें हर एक का नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सिंगल आंसर। ओके, क्या चाहिए, सिंगल आंसर। हाउ टू गेट द सिंगल आंसर, दैट पर्टिकुलर डी डेटा फ्रेम कंटेन एन वैल्यू। ठीक है, यस और नो। सो द नेक्स्ट वन वी यूज df डॉट वैल्यूज। ठीक है, इसी इज नल डॉट वैल्यूज। तो डॉट वैल्यूज हमेशा किसी एक फंक्शन के बाद भी यूज हुआ। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैल्यूज इट कन्वर्ट इनटू द एरे। डिपेंड करता है, ये आपके पास जो रिटर्न वैल्यू हो रही है, एक इट इज क्या है, वन वैल्यू, सो रिटर्न वन डायमेंशनल एरे, अदरवाइज रिटर्न टू डायमेंशनल एरे, डिपेंड करता है। ओके, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लगा, ओके, df, ओके, फॉर इंटीजर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते वैल्यूज, यहाँ लगाया। ठीक है, df डॉट सेव डॉट वैल्यूज, टोटल ऑब्जेक्ट है नो वैल्यूज, एक्सेस हम लोग यूज करते हैं, तो लिस्ट में सेट होगा डॉट। ओके, so generally it converts list into array. ओके, देखो किस फॉर्म में आ गया, एरे के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो अब वैल्यूज के थ्रू क्या मिलेगा आपको, एरे मिलेगा। सो एरे मुझे क्या मिला, ये एरे मिला। ठीक है, इसको किस फॉर्म में बना दिया, एरे के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, सो व्हेन वी यूज द वैल्यूज, तो आपको जो भी लिस्ट की वैल्यू है वो किस फॉर्म में मिल जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ एरेज। ठीक है, सो अभी आपको ये जो वैल्यू था, ठीक है, ओके, तो नॉर्मल हमारे पास डेटा फ्रेम ऐसे मिल रही थी, हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, वैल्यूज, तो मुझे अब क्या मिल गया, एरे मिल गया। तो एरे बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि एरे के पास एक फंक्शन है एनी। ओके, सो इफ यू यूज एनी देन इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। सो यदि एनी कोई एक वैल्यू भी इसके पास ट्रू होगी तो इट रिटर्न ट्रू, इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू। ठीक है, सो df डॉट इज नल, ओके, सबके लिए निकाला, फिर उसमें एरे बनाया, एरे बनाने के बाद में हमने क्या लगाया, एनी फंक्शन लगाया। इफ यू यूज एनी देन इट रिटर्न ट्रू इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू, इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू। सो मुझे क्या मिला, यदि कोई एक वैल्यू भी ट्रू है इसमें, इसका मतलब क्या है कि डेटा फ्रेम के पास क्या है, एटलीस्ट वन वैल्यू क्या है, कम से कम एक वैल्यू तो किसी है एन वैल्यू है। Okay, so this is the method by which we can find out that particular data frame contains nn value or not. ठीक है, nn value है या नहीं। Okay, the next one is df dot count. Okay, so count is used to count number of elements. By default it counts row wise. Okay, अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है that axis 0 क्या है and axis 1 क्या है। Okay,
नाउ ओके हम लोग चेक करते हैं दैट एक्सिस 0 क्या है एंड एक्सिस 1 क्या है. ओके सो ओके जो समझना है एक्सिस 0 क्या है, एक्सिस 1 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आपके टोटल फंक्शंस काम करेंगे. ओके सो सपोज हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशंस. ओके ये आपका ठीक है, सपोज आपका क्या है डेटा फ्रेम. अब इस डेटा फ्रेम को सपोज हम लोग कंसिडर करें तो हमारे पास डेटा फ्रेम में क्या है, यहाँ पर आपके कॉलम लेबल्स हैं 2015. ओके यहाँ पर है आपके 2016. ओके यहाँ पर है आपका Q1, ये है आपका Q2. ओके अब जस्ट ये देखना है कि एक्सिस 0 हम लोग किसको बोल रहे हैं. ठीक है सो एक्सिस 0 इसका मतलब है कि दिस इज योर एक्सिस 0. ओके ये आपका क्या है, इट्स योर एक्सिस इक्वल टू 0. ओके और ये क्या है आपका एक्सिस इक्वल टू 1. ठीक है सो अब जब हम लोग यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 0 यूज करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा. ठीक है सो आप जब एक्सिस इक्वल टू 0 यूज करेंगे तो आप जस्ट ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपको जो कंसोलिडेटेड वैल्यू है वो कहाँ मिलने वाली, यहाँ पर मिलेगी. कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी. सो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो ये कौन कौन सी वैल्यूज को क्या करेगा, जिससे सपोज हमने यहाँ पर किया सम किया. ओके और सम एक्सिस 0 किया तो अब वो किसको किसको सम करेगा, इस कॉलम की वैल्यूज को सम करेगा. ओके और कॉलम के अंदर क्या है, रोज की वैल्यू. मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी, ठीक है इन दोनों का सम मिला के मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. अभी जो सम होगा ये किसके लिए होगा, 2015 के लिए होगा. ठीक है ऐसे ही एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, वो किसका सम होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा, मिले यहाँ पर सम. ठीक है ये तो हो गया एक्सिस 0. तो जब हम लोग एक्सिस इक्वल टू 1 यूज करेंगे, सॉरी एक्सिस इक्वल टू 1 यूज करेंगे, ये आपका एक्सिस 1. ओके तो व्हेन वी यूज एक्सिस इक्वल टू 1 तो अब वो किसको प्लस करेगा, अब मतलब मुझे वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी. तो जब मुझे वैल्यू यहाँ मिलेगी तो वो किसको प्लस करेगा, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेगा. इसको प्लस करेगा, इसको प्लस करेगा, इसको प्लस करेगा और फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, Q2 के लिए मिलेगी. ओके फिर सेकेंड वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी. तो ध्यान रखना है और वो किसको प्लस करेगा, इन दोनों को प्लस करेगा. ओके देन ये जो वैल्यू होगी ये किसके लिए होगी, Q1 के लिए होगी. तो ध्यान रखना है व्हेन वी यूज एक्सिस इक्वल टू 0 माइंड में एक पिक्चर बनाना है एंड जस्ट इमेजिन करना है कि आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, इस एक्सिस पर मिल रही है. ओके इस पॉइंट पर मिल रही है. जब एक्सिस इक्वल टू 0 होगा तो कॉलम्स की वैल्यू यूज होगी, ध्यान रखना है. ठीक है बट होता किसके लिए है, होता किसके लिए, कॉलम्स के लिए. सो व्हेन वी यूज एक्सिस इक्वल टू 0 the particular function apply on the columns. Okay when we use axis equal to 1 होता किसके लिए है, होता किसके लिए, कॉलम के लिए. बट इसमें रो इंप्लीमेंट होती है. ठीक है सो व्हेन यू यूज एक्सिस इक्वल टू 1 इट विल ऐड और काउंट रोज वैल्यूज. ठीक है ऐसे एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1. ओके ये एक्सिस इक्वल टू 0. सो ध्यान रखना है. नाउ इफ यू यूज df डॉट काउंट सो बाय डिफॉल्ट इट यूजेस एक्सिस इक्वल टू 0. ठीक है तो जब एक्सिस इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है, 2015. ओके सो अब वैल्यू मुझे कहाँ मिलने वाली है, वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर. ठीक है
क्योंकि हमने क्या किया, एक्सेस इक्वल टू 0 किया, और ये आपकी क्या है, एक्सेस 0 है। क्या है, दिस इज एक्सेस 0. So if we use the access 0, then we use these two values. ऐसे यूज करेंगे. ओके, सो बाय डिफॉल्ट काउंट फंक्शन काउंट्स नॉट नल वैल्यूज, मतलब एन वैल्यू को छोड़ के काउंट करता है. ओके, so 2015, so the column heading will be 2015, then it will be 1. 2016 it will be 1. ओके, इस टाइप से ये काउंट करेगा. देन वी यूज एक्सेस इक्वल टू 0. so by default it count on axis equal to 0. ओके, सो df डॉट काउंट, ओके, ये दोनों सेम आंसर है बिकॉज यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, 0. बाय डिफॉल्ट इट्स 0. ठीक है, इफ यू यूज यहाँ पर 1 यूज करेंगे, देन अब ये किसके लिए हो गया, किसके लिए, एक्सेस इक्वल टू 1 के लिए. ओके, सो समझने के लिए सिंपल हम लोग यूज करेंगे काउंट. काउंट, सो बाय डिफॉल्ट इट एक्सेस इक्वल टू 0. क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0. तो ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सेस इक्वल टू 0 पर ये काउंट कर रहा है, और क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न नॉट नल वैल्यूज. याद रखना है, इट काउंट नॉट एन वैल्यूज. ठीक है, इट काउंट वैल्यूज एक्सेप्ट एन वैल्यूज. ठीक है, सो ये एन वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको क्या करेगा, काउंट करेगा. ठीक है, द सेम वी कैन यूज एक्सेस इक्वल टू 0. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आ रहा है. एक्सेस इक्वल टू 1, ये क्लियर हो गया होगा. व्हेन वी यूज एक्सेस इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि मुझे वैल्यू कहाँ मिल रही है, वैल्यू कहाँ मिल रही है, इस एक्सेस पर मिल रही है. तो जब हम लोग एक्सेस इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू आपकी कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी. ठीक है, ये वैल्यूज क्या होगी, काउंट होगी, और ये किसके अंदर आएगी, इसके अंदर. ओके, इसके लिए ये दोनों वैल्यू काउंट होगी, और किसके लिए आएगा, इसके लिए. ओके, सो सपोज ये आपका क्वार्टर है, और ये आपका क्या है, क्वार्टर 1. ओके, सो क्वार्टर के लिए यहाँ पर वैल्यू काउंट होगी, फिर क्वार्टर 1 के लिए वैल्यू काउंट होगी फाइनली. ओके, सो द सेम वी कैन यूज बाय यूजिंग द कॉलम्स एंड रोज. ओके, तो हमने यहाँ पर यूज किया कॉलम एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स. तो कॉलम की एक्सेस कौन सी होती है, ओके, कॉलम की एक्सेस कौन सी होगी, 1. याद रखना है. रो की एक्सेस कौन सी है, 0. सो व्हेन वी यूज एक्सेस इक्वल टू 0, एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब होता है रो. ओके, तो इंडेक्स इट मीन्स 0, कॉलम्स मीन्स 1. याद रखना है, कॉलम मीन्स 1. ओके, तो द नेक्स्ट, ये फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे. सो द रिमेनिंग फंक्शंस आपके पास क्या क्या हैं. ठीक है, एम्प्टी हो गया, सेफ हो गया, साइज हो गया, साइज रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंडिंग हो गया, एक्सेस हो गया, ओके, वैल्यूज हो गया, info. The next one is info. So suppose if you use the info, okay, so info return, there are so many functions. ठीक है, info return the information of the data frame. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक फंक्शन होता है डी, दिस राइट. Okay, so what is in info, ठीक है, print a conscious summary of data frame. Okay, so next we can say data types. Data types type. What is the function, d type, sorry. Okay, the function is d types.
ओके, सो आपको क्या मिला, फ्लोट. सो इन 2015, ओके, अगेन कैन वी यूज यहाँ पर 1, नहीं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न इंडेक्स 0. सो हर एक रो में क्या है, पर्टिकुलर डेटा टाइप्स ये आपको रिटर्न करेगा. ठीक है, so a particular data type may contain different types of data, so it return all. यहाँ पर एक ही डेटा टाइप है, इसलिए आपको एक ही वैल्यू मिलेगी. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, सो ये आप करके देखेंगे, अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे तो अलग अलग डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे. तो द नेक्स्ट थिंग वी स्टार्ट. ठीक है, अब हमें देखना है कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स, हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रेम एलिमेंट्स. ठीक है, एक्सेस का मतलब है कि सपोज आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे. ओके, हाउ टू एक्सेस डेटा, ठीक है, फ्रेम एलिमेंट्स. नाउ कैसे एक्सेस करना है, सपोज हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है. ठीक है, कोई बड़ी सी हम लोग डेटा फ्रेम बना देते हैं. ओके, सपोज ये हमने डेटा फ्रेम, ठीक है. सो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है. ओके, दूसरे पढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ से. नाउ वी गेट वन डेटा फ्रेम. ओके, इसको और अब बड़ा कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग और रोज इंक्लूड कर लेते हैं. लेट वी गेट 3, 5, 8, 8, then one more row you can add 22, 35, 67, 89. Okay, then we run it. Now number of values different हो गई, 4, 4, 4 and 4. Okay, row levels. जो एरर आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज हमने रो के लिए कितने लेवल दिए, 4 दिए, 2 ही दिए थे. नाउ हमारे पास रो कितनी हो गई, 4 हो गई. ठीक है, तो 4 लेवल्स भी रिक्वायर्ड. अब यहाँ पर हम मुझे क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, किसी एक कॉलम को एक्सेस करना है. ठीक है, सो जब भी हमें कॉलम को एक्सेस करना है, सो वी कैन यूज df. ओके, इसको हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं, इसका df1. ओके, नाउ df1 इन ब्रैकेट आपको क्या देना है, इंडेक्स. तो यदि हम लोग इंडेक्स से कहते हैं, क्या मिलेगा, a. ओके, सो ओके, सो df1a. सो a आपको क्या देगा, एक इंडिविजुअल कॉलम देगा. क्या देगा, इंडिविजुअल कॉलम देगा. ओके, तो df1a आपको 2 कॉलम चाहिए. सपोज मुझे अब इसके साथ में d कॉलम चाहिए, तो वी कैन यूज d. बट अब यहाँ पर 2 कॉलम्स हो गए. सो अब मुझे इसकी क्या करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी. सो ग्रुपिंग अब हमें जब भी करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी यूज लिस्ट. ओके, तो आप देखेंगे यदि सपोज हम लोग ग्रुपिंग नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, जनरेट एरर. ठीक है, सो आइदर आप क्या यूज कर सकते हैं, सपोज यदि मैं टपल यूज करता हूँ यहाँ पर. ठीक है, देखते हैं टपल पर ये काम करता है क्या. ठीक है, टपल पर काम नहीं करता है. तो अब मुझे क्या बनानी होगी, यहाँ पर लिस्ट बनानी होगी. ध्यान रखना है, जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो मुझे क्या करना है, लिस्ट बनाना है. ओके, सो अब मुझे दोनों कॉलम मिल गए, ए भी मिल गया एंड डी भी मिल गया. df1 a देन d. ये क्लियर है. तो किसी एक इंडिविजुअल कॉलम को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, df डेटा फ्रेम एंड देन ब्रैकेट, आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, लिस्ट वाले ब्रैकेट यूज करना है, इंडेक्स वाले ब्रैकेट यूज करना है. एंड देन इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल कॉलम को दे सकते हैं. जब एक से ज़्यादा कॉलम होंगे तो फिर आपको क्या करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी. ठीक है, और डेटा फ्रेम में ग्रुपिंग कैसे होगी, लिस्ट के थ्रू होगी.
तो ये हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, सो अब हम लोग किसी कॉलम को एक्सेस करना है। नाउ हाउ टू एक्सेस ए पर्टिकुलर रो। ओके, ये तो दो हो गए, डबल हो गए, तो इसी को हम लोग एक इंडिविजुअल कॉलम के लिए करेंगे, देन वी चेंज इट। ओके, देन use 1A, then D. Okay, now 2 access and कॉलम। ओके, अब इस कॉलम का सपोज मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ओनली सी वाला एलिमेंट चाहिए, हाउ वी कैन एक्सेस, ट्राई करते हैं। सो इफ यू एक्सेस दिस टू फर्स्ट, if you access 1, then we access 11. If you access C, then we get 2. Okay, so to access the individual elements, from the column, okay, can we use like C? Yes, we can use it. Okay, so अब रो लेवल यूज कर सकते हैं, एंड रो by default the system allows 0 1 2 3 4 indexing. Okay, so 0 for A, 1 for B, 2 for C and 3 for D. So सिस्टम के पास जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 1 2 3. ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, कॉलम लेवल दे रहे हैं एंड देन रो लेवल उसके बाद दे रहे हैं. सो टू प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम वी कैन यूज लाइक दिस. तो क्या हम लोग इसके साथ भी यूज कर सकते हैं. सपोज मुझे एक सी वाली रो प्रिंट करनी है, कैन वी यूज सी. Okay, now we cannot use it, so we can use it for the single element. Okay, so can we use now to, no, we cannot use it. Okay, so ये जो है, ये particular method we can use to print the values from the single column. You cannot use a multiple columns because यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एक कोई particular value नहीं मिल रही है. ठीक है, this is a kind of, क्या मिल रहा है, 2D array structure मिल रहा है. ओके, सो यदि क्या हम लोग इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें, सॉरी, ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था, इसको किया था डॉट वैल्यूज. वैल्यूज आपको पता है क्या करता है, ये आपको एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देता है. ठीक है, तो जब एरेस के फॉर्म में रिटर्न कर दिया है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज 2. इफ यू यूज 2 देन वी गेट द वैल्यूज 378. समझने वाली बात है कि हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमने क्या कर दिया, इस डेटा फ्रेम को एरे में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शंस हैं, वैल्यूज. तो जब ये वैल्यूज में आ गया तो अब हमारे पास क्या आ गया, एरे आ गया. ठीक है, अब एरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग व्हाट, इंडेक्स. हमने एरे को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लिया. देन वी गेट पर्टिकुलर रो. ठीक है, रो आपको मिल गई. तो ये एक तरीका हुआ, बट ये किसके फॉर्म में आ गया, अब एरे के फॉर्म में आ गया. नाउ वी कैन नॉट यूज डेटा फ्रेम फंक्शंस ऑन दिस. इससे एक ड्रॉबैक होगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो किस फॉर्म में आ गई, एरे के फॉर्म में आ गई. ओके, तो ये तो हो गई हमें कॉलम के थ्रू एक्सेस करने की मेथड्स हो गई. अब हम लोग सेम किसी रो के थ्रू एक्सेस करना है, देन वी आर यूजिंग द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज LOC and ILOC. Okay, so I use LOC and ILOC, both are the functions. Okay, both are the methods which can be used to access a particular column, can be used to particular
एक्सेस टू पर्टिकुलर रो, उसके थ्रू हम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं एलओसी को। ठीक है, आपको किसी कॉलम को एक्सेस करना है, कॉलम को एक्सेस कर लो, रो को एक्सेस करना है, रो को एक्सेस कर लो, कुछ भी। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज द एलओसी एंड आईएलओसी। ठीक है, एलओसी एंड आईएलओसी method to access any element of data। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, मे बी रो को, कॉलम को, ये कॉलम को, वो कॉलम को, किसी को भी एक्सेस करना है, देन वी कैन यूज एलओसी एंड आईएलओसी मेथड। ठीक है, कैसे यूज होगी नाउ विल सी। सो डेटा फ्रेम 1 डॉट, सिंपल से बताएं, ये करते हैं एलओसी। इफ यू यूज 0, ठीक है, तो ध्यान देना है एलओसी में क्या होता है। एलओसी आपके पास जो मेथड है, ओके, इसको मैं आपको बताता हूँ। एलओसी में हम लोग जो ये यूज करते हैं, दैट इज पहले आपका रो इंडेक्सिंग होगी, देन होती है आपकी कॉलम इंडेक्स। ध्यान रखना है, ओके। सो रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। सो यहाँ पर व्हेन वी यूज द एलओसी, इट यूजेस actual indexes। ओके, क्या यूज करता है एक्चुअल इंडेक्स। एक्चुअल इंडेक्स का मतलब है कि सपोज यदि हम लोग यहाँ पर 0 देंगे, इट विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, 0 क्या आपका इंटीजर इंडेक्स है। ओके, एक्चुअल इंडेक्स रो का क्या है ए। सो यदि आपने ए दिया, सो इट विल एक्सेस द ए। तो अब ये जो प्रिंट हो रहा है एबीसीडी, ये क्या प्रिंट हो रहा है, वी आर प्रिंटिंग द कॉलम्स। ठीक है, ये प्रिंट क्या कर रहा है, रो प्रिंट कर रहा है, बट आपको क्या दे रहा है, इस ए का 2 वैल्यू है, बी का 3 वैल्यू है, सी का 4 वैल्यू है एंड डी का 5 वैल्यू है। ओके, इस टाइप से वैल्यू है। फिर यहाँ पर कैन बी यूज 0 किसके लिए, किसी एक इंडिविजुअल कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका मैं और बताऊंगा आपको कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल रो को एक्सेस करना है, देन वी कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, बाकी हम लोग इसको कल पढ़ेंगे।